हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, देन दिस इज द राइट टाइम टू शॉप। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर अगस्त 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। कार्यक्रम के मेन स्पीकर डॉक्टर टी गणेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा। डॉक्टर टी गणेश सर, उन्होंने पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को सन 2010 में उन्होंने ज्वाइन किया था और उनका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्टेड है मरीन, बेंथिक, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी, इसमें उनका स्पेशलाइजेशन है। उन्होंने अभी तक 8 पीएचडी स्कॉलर्स को गाइड किया है और डॉक्टर गणेश, आप इस समय जो मेंबर ऑफ ओशियन सोसाइटी ऑफ इंडिया के आप मेंबर हैं, आपने अभी तक 50 से भी अधिक और रिसर्च पेपर आपने और बुक चैप्टर आपने पब्लिश किए हैं। आप वर्तमान में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी रुसाबाद में डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के कोऑर्डिनेटर भी हैं। आज आपने अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकाल करके आज के इस कार्यक्रम में हम सब, हमारे सभी बच्चों को और हम लोगों को भी, क्योंकि यू आर द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, so you have come to enlighten us on behalf of my own behalf, the NSS, and on behalf of the principal sir. I express my gratitude for coming over here, and I request our today's main speaker, Dr. Ganesh sir, please take this session. Thank you, sir. सबसे पहले वीडियो है छोटा सा वो ecosystem is crucial for not only biodiversity, but also human beings for their survival. We are dependent on them for our lives and livelihoods. The marine ecosystem is the lifeline for the most marginal people in the country, apart from several threatened and endangered fauna. To ensure the conservation of aquatic biodiversity, our Honourable Prime Minister recognised the need for a flagship conservation programme. Project Dolphin was announced by our Honourable Prime Minister on the 15th of August 2020 to secure the future of our aquatic ecosystems. प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया जाएगा। नदियों में, समुद्र में रहने वाली दोनों तरह की डॉल्फिन पर हम फोकस करेंगे। इससे Ministry of Environment, Forests and Climate Change, along with the Wildlife Institute of India and state forest departments, has developed a method for assessing the status of population of dolphins, associated species, and the health of our aquatic habitat. Technology has played a major role in innovating methods to conserve dolphins and other aquatic biodiversity through the use of pins to reduce net entanglement and EDMA to catalogue biodiversity from all levels. The project aims at the capacity building by nation through proactive response strategies and training of appropriate stakeholders in relevant skills. Community stakeholder empowerment to build an active conservation educated people and future generations and empowering the community for sustainable livelihoods is another objective of this project. The project aims to ensure security of livelihoods through dolphin-friendly activities, reducing the impact on aquatic ecosystems and encouraging sustainable development.
Project Dolphin also aims at ensuring science-based conservation of aquatic biodiversity. Truly in line with our philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family. This is Project Dolphin. वैश्विक नेता बनने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं समुद्री और नदी परिस्थिति की तंत्र की रक्षा के लिए मिशन लाइफ को अपनाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं डॉल्फिन परियोजना का समर्थन करने का वचन देता हूँ। हमारी डॉल्फिन हमारी विरासत। Thank you, sir. Thank you, Principal. Anything regarding you want about this dolphins or any doubts if you have, you can also ask me. And don't, if you are very welcome to ask me, I am sitting there in the foot of our campus. Anytime you can walk in, we are there to help you out for any kind of marine biological doubts. Or we have very good beach team over there. We can also show you what kind of organisms we have. You can just have this exposure about this marine biology. Thank you, Ananda. Respected Principal Dr. Verma ji, NSS Officer Dr. Kandiputhu sir, Dr. M.R. Murthy, Dr. Bala, and other faculty members of JNRM, and my dear students. Good morning, one and all. I am very fortunate today to meet you here and got an opportunity to share my knowledge with the 10 mines of Andaman and Nicobar Islands. And you know one thing, JNRM is the leading institution in Andaman and Nicobar Islands. This entire lecture has 3 messages. First one is love our environment and love all the species in and around us which are a part and integral part of our ecosystem. And in that, this dolphin is such a wonderful creature of God, which makes this aquatic environment most beautiful. So, second message is we should protect our environment, not to use single-use plastics and other hazards which pollutes the aquatic and marine life. And number 3, we should create this awareness to all our fellow human beings. हम जिनके साथ भी मिलते जुलते हैं उनको भी इस मैसेज को पास करना है। ये 3 मैसेज आज के इस कार्यक्रम में है, कार्यक्रम का मैसेज है। मैं एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जोर से ताली बजा करके सरकार। एक क्वेश्चन, आप में से कितने लोगों ने और डॉल्फिन देखा है? जस्ट रेज योर हैंड्स। कितने लोगों ने डॉल्फिन देखा है? लाइव, हाँ, फोटोग्राफ में तो सब है, लाइव डॉल्फिन सी है ना। तो यू विल लव टू सी, जब एक बार आप देखोगे ना, यू विल लव टू सी। कुछ प्रकृति की चीजें जैसे एक चिड़िया को देखने से हमें बहुत आनंद आता है, वैसे ही डॉल्फिन को भी जब आप वो मस्ती में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, तो आपको देखेंगे ना बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत लकी हूँ, हम जब हमारा जो गांव है कालीघाट से मायाबंदर जब जर्नी करते थे बोट में,
तो रास्ते में एक नारियल टिकरी बोल के एक जगह होता, और जैसे ही हमारा बोट उस जगह पे आता था तो हम लोगों को झुंड में जो है ना, और हमको और डॉल्फिन देखने को मिलती थी। तो आप भी ध्यान रखिए कि आपको भी डॉल्फिन देखना है। तो ऐसे यहाँ पर भी कभी जब हम हॉस्टल में रहते थे तो रोज आइलैंड के बीच में और हमारे हॉस्टल के बीच में भी हम बहुत बार हमने डॉल्फिन को साइट किया है। तो हमें मैरिड लाइफ को है ना, उनको प्रोटेक्ट करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, यही मैसेज आज दे करके जाना है। एंड टुडे द फर्स्ट डे एज आवर ग्राउंड प्रिंसिपल सर सेड कि भाई यू आर द लकी पर्सन, सो यू आर टेकिंग सम मैसेज एट द एंड ऑफ द डे। आज का जो आपका क्लास है फर्स्ट, और इस कॉलेज के नए एकेडमिक सेशन में आप लकी पर्सन पीपल्स हैं कि आप एक अच्छे मैसेज को अपने साथ आज लेकर के जा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। नाउ आई रिक्वेस्ट और डॉक्टर विजितेंद्र मंगल सर टू प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स। Before that, I request our principal sir to present a certificate of appreciation to our Dr. T. Ganesh sir. Good morning, everyone. On behalf of JNI, I want to thank Professor T. Ganesh for this wonderful session on dolphin. So awareness is the first part of any conservation effort, and I hope today we have all learned a lot about dolphins. This talk was highly informative and captivating at the same time. I thank Professor Nirmal Kumar Sharma ji, our respected principal sir, for gracing this occasion. I thank all the faculty members present here, Dr. Subha Prakash, Dr. Balasubramaniam, Dr. Phalani Swami, and Samir Barakat sir for gracing this occasion. And at the last, I thank Dr. Kandimu sir for organizing this very important event. And finally, my thanks to all the students for their attention, with the hope that you have got the message of conservation and not to use single plastics, which are the main problem for all the marine life and environment. With this, I thank all of you. नमस्ते। आज जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के एनएसएस की ओर से और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के इंस्पिरेशंस में हमने डॉल्फिन कंजर्वेशन अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया। इस प्रोग्राम में हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर एच के शर्मा सर हमारे मुख्य अतिथि थे, और इस अवसर पर पांडिचेरी यूनिवर्सिटी वृक्षाबाद कैंपस के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर टी गणेश सर इस अवसर पर हमारे मेन स्पीकर थे, और हमारे बच्चों को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से और किस प्रकार से हमारा एक्वेटिक और मराइन लाइफ और उसमें जो डॉल्फिन का इम्पोर्टेंस है इसको उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बच्चों को बताया, बच्चों को समझाया। इसके लिए डॉक्टर टी गणेश सर का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हर साल हम 14 अप्रैल को डॉल्फिन डे मनाते हैं और 23 अप्रैल को वर्ल्ड डॉल्फिन और व्हेल डे होता है, और इन डेज का जो ऑब्जर्वेशंस का ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमें अपने व्हेल्स को, अपने डॉल्फिन्स को हमें बचाना है। हमारी डॉल्फिन हमारी विरासत, इसी थीम के साथ यह कार्यक्रम आयोजित हमने किया था। धन्यवाद। ये कार्यक्रम डॉल्फिन बचाओ यानी एनवायरमेंटल का प्रोटेक्शन और साथ में मेराइन लाइफ का प्रोटेक्शन, ये हमारा मेन एम रहता है। और कॉलेज के माध्यम से ये है कि हम एनवायरनमेंट में कैसे अवेयरनेस करें अपने स्टूडेंट्स के बीच, जिससे पूरे वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट की वो हम ख़त्म कर सकें। पर्टिकुलरली पहले हम आइलैंड को जाएंगे, अपने आइलैंड को हमें पॉल्यूशन फ्री बनाना है और एक्वेटिक लाइफ को संवारना है, क्योंकि हमारी जो मेन सोर्स है वो सी है और उसी में आपका जो है जो मेराइन लाइफ है उसको बचाना है। तो
बीच क्लीनिंग, और उसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना जाए सी में जिससे क्या है कि फिश को, आपका जो भी मैराइन लाइफ को खतरा हो। तो यही हमारा उद्देश्य है। महाविद्यालय का विजन साफ है कि हम संपूर्ण विकास हमारे विद्यार्थियों का हो, यही हमारी कामना है और यही हमारा विजन है। धन्यवाद। Thank you, sir. It is a good opportunity for me to interact with students of JNRM College. So today is the auspicious day to discuss this very important topic of dolphins and their conservations. And during the session, we discussed about what are all different dolphin species, where they are living, what is their distribution, what is their feed, and how these dolphins are helping for human kind as well as the fisherman. In particular, what is their conservation, all the aspects and all we discussed. And a very important aspect highlighted at today's meeting was the avoid using single-use plastics. That is a major the concern about this marine pollution, which is affecting declining of this dolphin population. Thank you. Thank you. आज ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम आपको हुआ था। ये आपको जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत आपको जो एक मैसेज लेके जा रहा है, डॉल्फिन और एनवायरनमेंट और मेरीन को, जैसा आप हर एक स्टूडेंट आपको एक अच्छा नागरिक होने के नाते रखना चाहिए। और साथ साथ आपको जो है ये प्लास्टिक फ्री जोन, आपको समुद्र में आपको प्लास्टिक फेंकने की वजह से आपको जो समुद्र में रहने वाला आपको जो है जो भी आपको जो है जो आपको जो रहता है मच्छी वगैरह आपको जो है उनका जो है इफेक्ट होता है आपको, तो ये सब आपको नहीं होना चाहिए। इसलिए ये कार्यक्रम स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया प्रोग्राम था और ये प्रोग्राम में स्टूडेंट भी आपको बहुत खुश होकर आपको किया है। सबसे पहले आपको डॉल्फिन का बारे में आपको अच्छा जानकारी जो है जो आपको लेक्चर आपको दिए थे जो है श्री डॉक्टर टी गणेश की तरफ से आपको प्राप्त किया गया स्टूडेंट की तरफ से। धन्यवाद हमारे चीफ गेस्ट सर ने, हमारे आज के मेन स्पीकर सर ने, हमारे प्रोफेसर्स ने और सारे बच्चों ने आज के कार्यक्रम को बहुत एंजॉय किया एंड अपने साथ एक अच्छा मैसेज, हमें अपने डॉल्फिन जो हमारी विरासत है उसको बचाना है, हमारे मैराइन लाइफ को बचाना है, एक्वेटिक सिस्टम को हमें बचाना है, हमें अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री करना है। इन सब मैसेज के साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल सभी बच्चों ने अपने साथ यह संकल्प भी लेकर के वो गए हैं। हमने आज के इस अवसर पर एक शपथ भी लिया है, प्लेज भी लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे इस मैसेज को और पूरे बाकी लोगों को भी इसको पहुंचाएंगे। और मैं इस अवसर पर हमारे मित्र आयुष जो निकोबार टाइम्स के और से हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच।